Hello, nice pedos. So in today's session, we are going to talk about two main but basic concepts of mathematics. They are, as I already announced it in step 2, number system and divisibility rules. Besides this, I'm asking to write a comment that we are going good and we have no any issue of miscommunication. So please let me know that the screen is clearly visible and my voice is also clearly audible. Hurry up, please. So let's start. Number first, that is, let me write it. Number system. Right, and in number system we study various numbers, and we will be starting from natural number. So natural number is denoted by capital N, and it is also known as counting numbers, right? So natural numbers include, we write it like 1, 2, 3 and so on. And next there is whole number. So I'll be writing just their symbols, not whole thing, because we will be wasting time on these things. So you must understand the scenario here. So whole number is denoted by W, capital W, and it includes 0, 1, 2, 3 and so on. So whole number includes 0. It starts from 0. Let me check that. Okay, thank you. Okay, thank you. So these are two sets. One is natural number denoted by capital N, and it is excluded 0, while this one is included 0. Okay. Next we have integers. As you know, let me maximize it a little, and let me correct it as well. Okay, so that is integers, and integers can be positive or negative, right? It is denoted by usually capital Z or I. So in number lines, we start from, suppose this is 0, so right side, that is 1, 2, 3, 4 and so on, while left side of the 0 there is negative 1, negative 2, negative 3, negative 4 and so on. Okay, so these are all integers, whether it is positive or negative. So this section left of the 0, that is called positive, negative integers denoted by negative I, while this right hand side, head side, is called positive integers denoted by plus I. So that is the main concept about integers. I hope you are getting the basic idea.
and I will be giving you time for your question later on. So next we have rational numbers. And rational numbers in short form, it is the PYQ form, something which represent PYQ form, and both are will be integers, right? Both will be integers, but keep in mind that cube cannot be equal to 0. This cube ये 0 के बराबर नहीं हो सकते, ठीक है? तो उसको हम रैशनल नंबर कहेंगे, ठीक है? Generally rational numbers are represented by capital Q, and it is equal to like you say 3 over 7, 5 over 9, 3 over 9, and 1 or something. So these are some of the example I have written. Moreover, about rational numbers, that they are usually terminating when you convert these rational or fractional form, but basically rational numbers into decimal numbers, that we will be going to discuss the concept of rational numbers in detail. Or it can be non-terminating numbers, ठीक है? ये दोनों होंगे, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे ये क्या चीज़ है, ठीक है? तो ये तो इसके कॉन्सेप्ट हो गए. आगे चल के इसके अपोजिट हमारे पास क्या है, वो इर्रेशनल नंबर्स. irrational numbers, ठीक हो गया? So generally rational numbers are non-ratio. Keep in mind, एक तो ये ना इसमें रेशो की जो चीज़ें हम रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिक्स में वो नहीं होंगी, ठीक है? इसमें फ्रैक्शन वाले जो नंबर्स है वो भी इसमें नहीं होंगे, फ्रैक्शंस, ठीक है? ये चीज़ें क्या, ये नहीं होंगे, ठीक है? नॉन fractionalists you can say are non-fractions as well as non-ratio. इसके साथ ये neither terminating, as I have already written about, non-terminating nor repeating, ठीक हो गया? थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का या जो ऊपर वाली नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग कॉन्सेप्ट है. फॉर एग्जांपल एक नंबर है 3.1111 एंड सो ऑन 1, ठीक है? तो इसमें क्या है, ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया ये वाला नंबर, ठीक है? एक इसमें रिपीटिशन एक खास नंबर की आती है, तो इसको हम रिपीटिशन कहते हैं या रिपीट कहते हैं, ठीक है? या कोई दूसरा नंबर ले, फॉर एग्जांपल 6.0123 एंड सो ऑन, ठीक है? तो इसमें क्या है, एक तो ये वाला हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, और इसके साथ ही नॉन रिपीटिंग हो गया, ठीक है? तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे, ठीक है? ये आप समझिए यहाँ. So generally rational numbers and irrational numbers are opposite to one another. Okay. आगे चल के हमारे पास अच्छा इसके एग्जाम्पल, what are the example of rational irrational numbers? So you can say that root 2 is also rational numbers, because when you convert into decimal form, so it is equal to like 1.4, 4, 1, 2 and
so on. So here you see this is a rational number, and we have already written here that it is neither terminating nor repeating. ठीक हो गया? तो ये आप ये देख सकते हैं, ये तो ख़त्म भी नहीं होते आगे चल के, मतलब कोई भी हद इसके नहीं है, और रिपीटिंग भी नहीं, क्योंकि इसमें वेरियस नंबर आते हैं, ठीक है, एक ही नंबर नहीं है. ओके, दूसरे एग्जाम्पल अगर हम इसके ले रहे, फॉर एग्जाम्पल √3 और √15, you know, or one famous example pi, okay, and pi is its numerical value is 3.145, so it is up to. So again it is neither terminating nor repeating. ठीक हो गया? तो ये इर्रेशनल नंबर है. आगे हमारे पास आती है रियल नंबर्स, ठीक है. स्पेलिंग में कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, एक तो मैं इनफॉर्मल राइटिंग लिख रहा हूँ, इस वजह से कि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, ठीक है, इस वजह से चीज़ें बहुत है और टाइम शार्प होगा, तो इस वजह से मैं कुछ इनफॉर्मल चीज़ें लिखूंगा, सो दैट वी गो कन्वीनियंटली. नाउ रियल नंबर्स आर seat of rational numbers plus irrational numbers. And real numbers are represented by capital R equals negative infinity to पॉजिटिव इन्फिनिटी. ठीक हो गया? इसमें कुछ भी आ सकता है, इसको हम रियल नंबर्स कहते हैं, ठीक है. रियल नंबर इसलिए कहते हैं कि इससे कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ काम तो है ही, इस वजह से इसको हम रियल नंबर कहते हैं. और बाकी तो रेशनल नंबर हमने डिफाइन कर दे कि ये क्या चीज़ है. तो ये वी रिप्रेजेंट लाइक दिस इज द सीट ऑफ रेशनल नंबर इन रेशनल. तो कुछ भी एग्जांपल आप इसमें ले सकते हैं. While opposed to the real numbers, we have imaginary numbers. ठीक हो गया? अब imaginary numbers को हम complex numbers भी कहते हैं कभी कभी. So they are against real number non-existing as well as sometime, but most of time you can say that impossible to solve. What? Imaginary numbers. अब imaginary ना आप imagine कर सकते हो, नॉन एग्जिस्टिंग है तो लाजमी बात है इम्पॉसिबल टू सॉल्व, ये चीज़ तो आना ही है. ठीक हो गया? अच्छा, इसकी एग्जांपल अगर हम ले ले, फॉर एग्जांपल -1/√, ठीक हो गया, -2 ले ले या -3 ले ले, -4 ले ले. तो ये इसके एग्जांपल है, ठीक है. आगे हमारे पास है प्राइम नंबर्स. व्हाट आर prime numbers? The prime numbers are those number which is divisible by 1 and itself. क्या? Those number which are divisible by 1 and itself. ऐसे नंबर जो अपने आप पे और 1 पे डिवाइड होती है उसको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 इज द ओनली, कीप इन माइंड, इज द ओनली इवन, ये इवन है, ठीक है. प्राइम
number. And one thing more about it, 0 and 1 are not prime numbers because they are non-divisible by neither by itself nor by 1. एक तो यू गया, ये इवन जो है ना ट्रू है, ओनली प्राइम नंबर है, उसके अलावा जो 0 1 है ये क्या है, ये दे आर नॉन प्राइम नंबर्स. लेट मी चेक दैट वी आर गोइंग गुड, आई होप सो. अच्छा, आप भी पार्टिसिपेट करें ना, कुछ ना कुछ तो लेके, ठीक है, मुझे भी पता चलेगा कि कुछ तो चल रहे हैं. ठीक हो गया. आगे हमारे पास है कंपोजिट नंबर. कंपोजिट numbers. So composite numbers are positive integers. Positive integers, not negative, as well as not prime number. या हमने स्पेसिफाई कर रही है, ठीक है, इसमें आगे जाने मतलब लिखने की जरूरत नहीं है. Composite numbers are just positive numbers but not prime numbers. Not but not prime numbers. ठीक हो गया. कंपोजिट नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स है, लेकिन ये प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते, ठीक है. और उसके जो फैक्टर्स होते हैं ना, फैक्टर्स आगे जाके हम ये इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के कॉन्सेप्ट में, ठीक है. इसके फैक्टर्स जो है ना अदर देन 1 इन इटसेल्फ, या हमने स्पेसिफाई कर दिया कि प्राइम नंबर्स आर दोस नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ. तो यहाँ ये कंसेप्ट बनता है कि ये मतलब इसके जो फैक्टर्स है वो क्या होंगे, वो अदर देन 1 एंड इटसेल्फ. ये मतलब कॉमन चीज है, लेकिन इसको मतलब हम गौर नहीं करते, ठीक है. और इसकी एग्जांपल जो है ना आप प्राइम नंबर्स के अलावा जो भी एग्जांपल है उस ले रहे, 4 ले रहे, 6 ले रहे, 8 9 10. ठीक हो गया. तो ये कॉम्पोजिट नंबर्स हो गई, राइट. सो दीज आर द numbers, different numbers we have discussed so far. ठीक हो गया. And I hope that you get the basic idea about this number system. अच्छा, एक बात और, इसके जो इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना, इसको हम जो दूसरा वो लेते, मैं बताना भूल गया, इसको हम रियली जो है ना दूसरे कॉन्सेप्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स या बुक्स हवाला देते हैं, तो वो कहते हैं कि ये रियल पार्ट, कभी कोई कहते हैं कि इमेजिनरी नंबर्स जो है ना ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, और कोई कहते हैं कि नहीं, इमेजिनरी नंबर्स अलग चीज़ है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना ये अलग चीज़ है. तो अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करें, ठीक है, तो ये रियल नंबर्स प्लस इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है, ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनाते हैं. ठीक हो गया. लेकिन फिर भी वही बात आती है. फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें 4 + 0 आयोटा, ठीक है, तो ये इसके एक एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स नंबर के. तो ये वाला पार्ट जो है ना ये रियल पार्ट बन गया, और ये वाला जो है ना ये इमेजिनरी पार्ट बन गया, क्योंकि आयोटा की जो क्या है इस तरह मतलब इमेजिनरी पार्ट है, इसमें रियल पार्ट रियलिटी कुछ है नहीं, हम इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है. इस तरह 0 + 7 आयोटा, ठीक है, तो ये रियल पार्ट बन गया, ये वाला क्या कहते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी पार्ट बन गया, ठीक है. अच्छा,
आगे इसमें जो है इसकी जो एप्लीकेशन भी है, खासकर जो फिजिक्स है, ठीक है, या जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है उसमें है, लेकिन उससे हमारा कुछ लेना देना ही है, क्योंकि हमने तो जीसे के हिसाब से जाना है ना, और हर चीज़ को हम इतनी डीपली नहीं ले सकते, ठीक है। नाउ कमिंग टू अनदर कॉन्सेप्ट एंड देयर इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब ये क्या चीज़ है, ठीक है, मतलब ये आसान सी चीज़ है, लेकिन फिर भी लोग कंफ्यूज होते हैं जब ये चीज़ें देखते हैं। सो फैक्टर्स, लेट मी राइट इट, फैक्टर्स आर you can say a number that is multiplied by any number, by any other number. For example, 4 times 12 equals ये क्या आती है, यस, तो 48। 4 times 12 equals 48, ठीक हो गया। So we say that 4 and 12 are factors of 48। आसान से अल्फाज में जो मल्टीप्लिकेशन के जो प्रोसेस या ऑपरेशन है, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर्स होंगे याद आने के लिए, ठीक है, वो फैक्टर्स होंगे। अब दे प्रोडक्ट्स, तो ये प्रोडक्ट्स बन गया ना राइट हैंड साइड। इस तरह जो मल्टीपल्स हम बात करते हैं, या मल्टीपल्स द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, आसान अल्फाज में मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन, ये मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन है ना, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट है राइट हैंड साइड। (48) is the product which is the multiple of 4 and 12, ठीक हो गया। तो ये वाला क्या हो गया, ये मल्टीपल हो गया। मल्टीपल किसके, 4 और 12 के। होपिंग दैट यू आर गेटिंग द आइडिया। यस अलीन खान, 4 times 4 equals 16, तो 4 जो है ना, ये क्या, ये फैक्टर्स बन गई 16 की जो प्रोडक्ट है, और 16 जो है ना, ये क्या है, ये मल्टीपल है किसके, 4 और 4 के। और फिर जो याद आने के लिए जो राइट हैंड साइड की चीज़ें हैं वो मल्टीपल है, और लेफ्ट हैंड साइड की चीज़ें हैं वो क्या है, वो फैक्टर्स है। अब आते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स की तरफ। डिविजिबिलिटी रूल्स जो कॉमन रूल्स है, ठीक है, क्योंकि इसके बेस पे हमने आगे जाके जो है ना मुख्तलिफ मैथमेटिकल ऑपरेशन करने, जैसे कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, और आगे जाके जो है ना हम जो है ना फ्रैक्शन में ये अप्लाई करेंगे, डिसिमल में अप्लाई करेंगे, ठीक है, परसेंटेज में अप्लाई करेंगे, ये चीज़ें। तो ये आपको कम से कम पता होना चाहिए। अगर हम 2 से स्टार्ट करें, ठीक है, वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा जिसके लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो या इवन हो। मैं इस तरह लिखूंगा, मतलब जो भी नंबर है, ठीक है, आप बाद में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। 2 से तकसीम होगा, फॉर एग्जाम्पल 2 3 एंड 1 0, ठीक है। तो यह रूल ये कहता है कि ऐसा नंबर जिसके लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो,
तो 2 पे डिविजिबल होगा, या क्या हो, इवन हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। इस तरह अगर हम 3 की बात करें, a digit added to digit, ठीक हो गया, of a number and divisible by 3, then the complete number is divisible by 3। ठीक है, let's take an example. Suppose we have 25 and 56। ठीक है, इस कंसेप्ट को समझिए। ठीक है, अब इसको हम सम अप करते हैं, 2 + 5 + 5 + 6। ठीक हो गया। जब हम इसको सम अप करते हैं तो इससे क्या आ जाएंगे, इससे मतलब 2, 2, 6, इससे 18 आ जाएंगे। ठीक है, और फिर इस 18 को अगर हम क्या करें, 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल है। मतलब कंसेप्ट ये है कि अगर आप जो लार्ज नंबर है, इसको, इसकी जो सारे डिजिट है नंबर, इसको आप सम अप करें एक दूसरे से, जो नंबर आएगा वही 3 पे डिविजिबल होगा। ठीक है, अच्छा 4 की बात करें, सो अगेन 4 इज इवन, सो इफ 2 आर मोर zeros, let me write it correctly, zeros, if 2 or more zeros at the end of a number, at the end of a number, एक नंबर के जो end पे 2 या 2 से ज्यादा जीरो हो तो 4 पे क्या होगा, वो डिविजिबल होगा। ये एक रूल है, बाद में आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, जो मोस्ट केसेस है वो होते हैं। ठीक है, अच्छा 5 की तरफ आते हैं, तो 5 क्या है, ऑल नंबर्स, वी से ऑल नंबर्स हुज वंस को हम यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, यूनिट 10 और वही वाली बात है, प्लेस वैल्यू की जब हम बात करते हैं। वंस क्या हो, जब ये 0 हो या 5 हो तो लाजमी बात है ये 5 पे, वो नंबर 5 पे डिविजिबल है, अदरवाइज नो। मतलब कोई भी नंबर ले ले, 5, 1, 6, 7, 2, आखिर में 5 हो तो ये 5 पे डिविजिबल है, अदरवाइज ना। ठीक है, नंबर 6 एंड दैट इज अगेन इवन, सो दोस नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 and 3, ऑलरेडी हमने 2 और 3 की बात की है। नंबर्स दोस विच आर डिविजिबल बाय 2 and 3 आल्सो डिविजिबल बाय 6। ठीक है, जो भी नंबर 2 और 3 पे डिवाइड होंगे वो 6 पे भी डिवाइड होंगे। ठीक हो गया। ठीक है, हमने यहाँ बात की, ये चूंकि और है लेकिन फिर भी यहाँ हमने इसके लिए कुछ चीज निकाले है, एक फार्मूला, एक कॉन्सेप्ट, और 2 इवन है, इस तरह 6 भी इवन है, इस वजह से ये डिविजिबल है। जो नंबर इन दोनों पे डिविजिबल है वो 6 पे भी डिविजिबल होगा। 6 की तरफ आते हैं, 7 इज इसमें तो बातें बहुत है लेकिन हम ये का एग्जाम्पल से हम समझाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 6, 5, 8 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, जिसके जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं, ठीक है, ये वाले 6, 5, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे आगे जाके जो यूनिट वाला
डिजिट है ये वाला, पहले हम इसको क्या करते हैं, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हम इस तरह करते हैं। सो 2 times 8 इक्वल्स व्हाट 16, और फिर हम इस 16 को क्या करेंगे, ये वाला ठीक नहीं है, ठीक है। 16 को हम माइनस करेंगे 65 से। जब हम ये करते तो हमारे पास क्या आएगा 49, एंड 49 इज टोटली डिविजिबल बाय 7। कॉन्सेप्ट क्या है, आपके पास कोई भी नंबर है, ठीक है, इसके जो यूनिट वाला डिजिट है इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि ये हो गया, ठीक है। और जब इसकी जो प्रोडक्ट आएंगे, इन दिस केस वी हैव 16, तो आपने इसके बाकी जो नंबर्स आएंगे उसको आपने उसी से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने आगे जाके जो प्रोडक्ट आएगा वो 7 पे डिविजिबल होगा। अच्छा, 8 अगेन इवन नंबर, ये कुछ जब इवन की बात आती है तो ज़हन में इजीली से आते हैं। सो लास्ट when we have last 3 digits, ठीक है, या मतलब लास्ट 3 आर मोर 8 हो या 3 zeros हो, ठीक है। when we have a number and it has 3 at least or more zeros or 8, ठीक हो गया, तो इसको हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज नो। 3 डिजिट्स क्या होंगे, या तो मतलब zeros होंगे या 8 होंगे, ठीक है। तो ये वाला नंबर जो भी हो, जितने भी डिजिट्स उसमें हो, वो 8 पे क्या होगा, डिविजिबल होगा। 9 है, so again we have odd number, so sum up all digits by 9। एग्जाम्पल से हम ये समझेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव कोई भी नंबर ले दें, 9 3 and 6 8 1 9, ये एक नंबर है, उसमें कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसे मतलब 3 वाला कंसेप्ट है। तो आपने पहले इसको क्या करना है, 9 + 3 + 6 + 8 + 1 + 9, ठीक है। तो आपने इसको एड अप करना है। जब आप इसको एड अप करते ये मतलब 8 19 1 and 6 and 3, so we got 9 7 so we have the okay, so it become 36, ठीक है। चलो फिर से करते, गलत तो नहीं है ना, 9 ठीक, यस ठीक है, 36 प्रोडक्ट बन गया इससे, ठीक है। अब ये 36 जो है ना, ये 9 पे डिविजिबल है। कैसे, आपने क्या करना है, 9 times 4 ले ले तो क्या आ जाएगा, 36 आएगा, 36, ठीक है। तो आपने जो नंबर्स उसको एड अप करने हैं, अगर ये मतलब आ गया तो ये कोई भी प्रोडक्ट आएगा तो ये 9 पे डिविजिबल होगा, अदरवाइज नो, ठीक हो गया। अच्छा, बाकी हमारे पास 10 है, और 10 तो मतलब ये क्या है, जब उसके वंस क्या हो, 0 हो। कोई भी नंबर उसकी एंड जो वंस है ना, या यूनिट जिसको हम कहते हैं, वो 0 हो तो वो नंबर 10 पे डिविजिबल होगा, अदरवाइज नो। So these are 2 main concepts, basic concepts of mathematics we have discussed so far, and hoping that you find it beneficial, ठीक है।
चीज़ें तो रिलेटिव है, बट फिर भी हमने कोशिश की. Now if you have any questions, so go ahead. Okay. So we have Muhammad Ismail, most welcome. Halim, you are old student, and yes, Iqra Said, also most welcome. And okay, so we will be continuing this discussion, and tomorrow we will be having other concept like fractions. We will be working with the fractions, what are fractions, and how to convert fraction into decimals and their types. For example, proper fractions, improper fraction, fraction, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. ओके, और इसके बाद जो है ना उसके जो कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लिकेशन किस तरह करते हैं, डिवीजन किस तरह करते हैं, एडिशन है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें आते हैं. तो ये हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे. इसके साथ साथ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है HCF और LCM के, ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे. एंड अच्छा, कनूज अरीजू, y1 इज नॉट प्राइम नंबर नहीं है ना, ये अपने आप पे डिविजिबल है. हाँ, कुछ तो सोचे ना, ये प्राइम 0 और 1 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है. आप ट्राई करो ना तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है. ये प्राइम नंबर नहीं है. आप डिवाइड करो, आपको पता लग जाएगा. 1 है ना, तो आप किस तरह डिवाइड करते हैं. ओके, although it is divisible by itself, how it is divisible by itself? Maybe I don't know, you can tell me, you can explain. It will be nice to you. Okay, मुझे तो पता नहीं है किस तरह डिविजिबल. अगर आप बता रहे तो ये भी ठीक होगा, ठीक है. अच्छा, और कोई क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी पूछें. मैं तो खुद मैथमेटिशियन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी साउंड नॉलेज रखता हूँ इसके बारे में, ठीक है, और पढ़ भी रहा हूँ इसके बारे में. मुझे तो अभी तक ये नहीं है, शायद आपको पता हो तो आप बता रही, ठीक है. बाकी टाइम शॉर्ट है और सेशन को इन करना पड़ेगा. सो नाइस ऑफ यू and see you tomorrow.